Hello students, welcome in our geography class. Let me continue our sixth chapter, World Human Settlement. Students, our today's topic is the case study of Dharavi, Mumbai. Students, it is the special study of the Dharavi Kachi Basti of Mumbai. Students, Mumbai is the large slum area of Asia. The Dharavi Kachi Basti of Mumbai, क्या बोल रही हूँ मैं वापस से शुरू कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर से देख लेना. Let me take a case study of the Dharavi Kachi Basti of Mumbai. Students, the Dharavi Kachi Basti of Mumbai is the largest slum area of Asia. एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, स्लम बस्ती है, स्लम एरिया है धारावी कच्ची बस्ती. Like the slums of other countries of the world, the life here is a real hell. बहुत ही दुखदायी जीवन यहाँ के लोग जीते हैं. कैसे? चलिए देखते हैं. The scene of Dharavi slum can be described as follows. Firstly, establishment of Dharavi slum. धारावी स्लम का एस्टैब्लिशमेंट जो है 18th सेंचुरी में हुआ. In the 18th century there was a island here. ये एक आइलैंड था. It was built by the कुम्हार्स of गुजरात. गुजरात के कुम्हार्स थे, उन्होंने 70 years पहले इसकी नींव रखी, इसकी शुरुआत की. And their number was around 10,000. Then location. The slum is located in Mumbai, 12 kilometers southwest of Juhu. जुहू से 12 किलोमीटर दूर है ये स्लम एरिया. बिटवीन सबसिटी रेल रूट्स की जो सबसिटी है उसके बीच में बसा हुआ. एंड इट्स एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 557 एकड़. 557 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा एंटायर एरिया. एंड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 12 कॉलोनीज. 12 कॉलोनीज से मिलकर के बना है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन. According to 2011 census, the population here resides nearly 6 lakh, which stays in 1 lakh houses. It means 10 to 15 persons live in a single room in house, and 60% of families have been staying here since last 60 years. 2011 census के अनुसार यहाँ का टोटल पॉपुलेशन कवर 6 लाख है, जो कि 1 लाख घरों में रह रहा है. और अगर इसको कंपेयर करें तो 10 से 15 लोग एक कमरे में. और यहाँ का जो 60% फैमिलीज हैं वो पिछले 60 सालों से यहीं रह रहे हैं. Now what is the mode of transportation they use? In Dharavi Mumbai, in Dharavi Kachi Basti, only a single main road goes through the dirty colony, which is known by name of 90 feet road. इस पूरी धारावी मुंबई में एक सिंगल मेन रोड इस पूरी डर्टी कॉलोनी को कवर किए हुए है, और इस रोड का नाम है 90 feet road. Its breadth has become less than half, पर अब इस 90 feet रोड की चौड़ाई घट करके आधी हो गई है. And here the buses of the transport corporation ply along the boundary of the colony, and even an auto rickshaw can't enter into the colony. ये रोड इतनी सकरी है कि ऑटो रिक्शा तक इस कॉलोनी में अच्छी तरीके से एंटर नहीं कर सकता. धारावी slum is such a part in central Mumbai where the entrance of even 3-wheelers is prohibited. Some streets and lanes are so narrow. The Dharavi Kachi Basti is having a very narrow area. So very difficultly the bicycle only can passes through this narrow lane. 3-wheelers are also prohibited in this area because some of the streets and lanes are very narrow here. Now let us talk about building or houses. There are
Now let us talk about building or houses. There are buildings of temporary construction in the entire colony, which are 2 to 3 storied, and there are rusted stairs on them. यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन वाली है और नॉर्मली 2 से 3 स्टोरी आराम से मिल जाएगी. And even 10 to 5 persons live in a single rented room here. The houses are built at different heights and are differently painted. Now some of the basic amenities which is present in the Dharavi Kachi Basti. These are, there are no proper arrangement of pure drinking water, air, light. किसी भी तरीके का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है बेसिक रिक्वायरमेंट्स का. ना तो यहाँ पर प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है और ना ही एयर और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है, यानी कि वेंटिलेशन जो है वो भी अवेलेबल नहीं है. एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट हियर देयर इज अ सिंगल टॉयलेट फॉर 1500%, and the drains of dirty water remain filled due to no provision of exit of dirty water. हमेशा ये इलाका जो है गंदगी से भरा रहता है क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है. So hence there is a lack of basic amenities, and on several places there is a majority of black crows and long brown rats. ये कच्ची बस्ती अगर एमिनिटीज के तौर पर कुछ देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है. अगर कुछ मिलेगा तो काले कौवे और भूरे बड़े बड़े चूहे. Now occupation and employment. Students on several places there are furnaces. फर्नेस क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस. इन ब्लास्ट फर्नेस में मड प्रोडक्ट या ब्रिक्स बनाए जाते हैं. तो ऐसे फर्नेसेस जो हैं बहुत सारे हैं इस धारावी एरिया में, और इन फर्नेसेस में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड एक्सेप्ट दीज, amongst plastic recycling of each product is done ranging from beauty products to computer. यहाँ पे हर तरह का रिसाइकलिंग जो है, हर तरह की रिसाइकलिंग यहाँ होती है, प्रोडक्ट से लेकर के इवन ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर के कंप्यूटर तक. Where there is a recycling of 23% garbage in Great Britain. In this Mumbai slum area, 80% garbage recycled here. जहाँ यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में 23% गार्बेज का व्यवसाय होता है, वहीं इस धारावी एरिया में 80% रिसाइकलिंग, गार्बेज रिसाइकलिंग का काम होता है. ड्यू टू विच द ब्लैक पॉइजनस स्मोक इज स्प्रेड एवरीवेयर. और इस गंदगी की रिसाइकलिंग की वजह से काला धुआं, ब्लैक पॉइजनस जो धुआं है वो चारों तरफ फैला रहता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. एंड देयर इज एन एविडेंस ऑफ फिशरमैन इन द नैरो डर्टी स्ट्रीट. धारावी मुंबई जो है वो अरेबियन सी के पास में होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे फिशरमैन भी आपको मिल जाएंगे जो कि इस नैरो डर्टी स्ट्रीट में, इन कॉलोनीज में रहते हैं और फिशरीज वाले वर्क में एंगेज रहते हैं. तो द स्लम इज फेमस फॉर मैनी यूजफुल एक्टिविटीज. The work of making clay utensils, ceramics, embroidery, zari work, work of polished leather, metal work, superior jewelry, furniture, stitching, high fashion clothes, etc. is done in Dharavi, Mumbai. And also it is a big tourist center now and a big center of small artists of the film. फिल्म में जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं उनके रहने की जगह भी आजकल ये धारावी मुंबई है. It means 85% of people find job themselves or in the slum itself. या तो इस धारावी एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को, या फिर ये धारावी एरिया ही बहुत सारे लोगों की जॉब का डेस्टिनेशन बन चुका है. Now trade. The productive things of this place are consumed in Mumbai. यहाँ के जो प्रोडक्टिव थिंग्स हैं वो मुंबई में कंज्यूम होते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी कंज्यूम होते हैं. तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अरब कंट्रीज, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज एक्सेट्रा. धारावी मुंबई में जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं इनका सेल ना सिर्फ मुंबई में है बल्कि मुंबई के अलावा पूरे इंडिया में है.
और इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में जैसे अरब कंट्रीज हैं, यूएसए हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टर्स हैं धारावी प्रोडक्ट की। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी 650 मिलियन US डॉलर ट्रेड टेक्स प्लेस पर ईयर फ्रॉम हियर। यहाँ से हर साल 650 मिलियन US डॉलर का व्यापार हर साल होता है। नाउ समथिंग अबाउट लाइफस्टाइल। ड्यू टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैक बेसिक फैसिलिटीज 4,000 चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया एंड टाइफाइड। यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत ही अजीबोगरीब है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और इतनी लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि 4,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल डिप्थीरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और डेली पहुँचते हैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए। द पेशेंट्स ऑफ डेंगू, डाइसेंट्री, जॉन्डिस are easily noticeable in this Dharavi slum. But Dharavi is still considered as an illegal कच्ची बस्ती due to non-ownership of the land. आज तक इस लैंड पर किसी का ओनरशिप नहीं है और इस वजह से ये धारावी आज तक इलीगल कच्ची बस्ती के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है। Now let us discuss some future plans of Dharavi slum. Famous businessman Sri Mukesh Mehta wants to rehabilitate the residents here by making a plan of reconstruction. And the cost of reconstruction is nearly $2 billion. एक फेमस बिजनेसमैन है श्री मुकेश मेहता, ये चाहते हैं कि धारावी जो है वो रिहेबिलिटेट हो, वापस से ढंग से बसाई जाए, रिकंस्ट्रक्शन हो यहाँ, और इसके लिए उन्होंने एक $2 बिलियन का प्लान भी कंस्ट्रक्ट किया है। क्या है इस प्लान में? He make a plan to construct multi-story buildings. The slum being in the center of Mumbai, so the prices of land is so high that the plan of reconstruction seems to be fatal. हालांकि ये जो एरिया है स्लम एरिया, ये सेंटर पार्ट में है मुंबई के और इसकी वजह से यहाँ का जो लैंड प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हाई है और इस लैंड प्राइस के हाई होने की वजह से ये जो इस फेमस बिजनेसमैन श्री मुकेश मेहता जी का जो सपना है ये बिल्कुल धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। He has planned to rehabilitate people who have been staying here since the year 2000. ये चाहते तो ये हैं कि सन 2000 से पहले जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको इस कच्ची बस्ती में रिहेबिलिटेट किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए इनके एरियाज को। What the Maharashtra government did. What are the Maharashtra government doing? Maharashtra government also want to rehabilitate this colony. Government भी चाहती है कि colony rehabilitate हो, so that along with healthy environment, the citizen here may get basic facilities like pure drinking water, light, air, toilet, etc. Government तो चाहती है कि ये colony वापस से बसे ताकि यहाँ के लोगों को healthier environment मिल सके, उन्हें basic facilities जैसे pure drinking water, प्रॉपर लाइट, एयर फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड हो सके एंड पीपल मे बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीजेस। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो गरीबी से, भूख से, अनएम्प्लॉयमेंट से और डिजीजेस से बच सकें एंड द फ्यूचर जनरेशन मे बी प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशन और आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉपर एजुकेशन भी। तो ये थी केस स्टडी धारावी स्लम एरिया की, जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है। लगभग हमारे इंडिया में और एंटायर वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे स्लम एरियाज हैं जिनको रिहेबिलिटेट करना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी हो सके, तो इन स्लम एरियाज का रिहेबिलिटेट, रिकंस्ट्रक्ट होना ज़रूरी है। और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इंडिविजुअली हमें भी स्टेप्स लेने होंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।